بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 18۔ وسیم میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ امامہ نے اس رات کھانے پر سالار سے کہا تھا۔ سالار کو وہ بہت پریشان لگی تھی۔ ہو سکتا ہے مصروف ہو، سالار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ناراض ہے۔ اس بار سالار چونکا تھا۔ ناراض کیوں ہوگا؟ امامہ نے اسے اپنی اور وسیم کی گفتگو سنا دی۔ سالار گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ بالغ آدمی ہے، وہ بزنس کر رہا ہے، بیوی بچوں والا ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کیا صحیح ہے۔ تم لوگ آپس میں ملتے رہنا چاہتے ہو تو مذہب کو ڈسکس کیے بغیر ملو۔ سالار نے اسے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھایا۔ بات اس نے شروع کی تھی، وہ نہ کرتا تو میں بھی نہ کرتی۔ امامہ نے جیسے اپنا دفاع کیا، اور خود بات شروع کرنے کے بعد اب وہ تمہاری فون کال نہیں لے رہا تو بہتر ہے۔ اب تم انتظار کرو سکون سے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو کر لے گا وہ تمہیں کال۔ سالار کہہ کر دوبارہ کھانا کھانے لگا۔ امامہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ اب کیا ہوا؟ سالار نے سلاد کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے اس کی خاموشی نوٹس کی۔ میری خواہش ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے، اس گمراہی کی دلدل سے نکل آئے۔ سالار نے ایک لمحہ رک کر اسے دیکھا، پھر بڑی سنجیدگی سے اسے کہا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اس کی زندگی ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ تم اپنی خواہش اس پر امپوز نہیں کر سکتی۔ امپوز تو کر بھی نہیں رہی میں۔ وہ پلیٹ میں چمچ بے مقصد ہلاتے ہوئے دل گرفتہ ہوئی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان کا وہ چیزوں کو جادو کی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ سالار نے اس کی دل گرفتگی محسوس کی، پھر جیسے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ زندگی میں جادو نہیں چلتا، عقل چلتی ہے یا قسمت۔ اس کی عقل کام کرے گی اور قسمت میں لکھا ہوگا تو وہ اپنے لیے کوئی سٹینڈ لے گا، ورنہ میں یا تم کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھاتا رہا تھا۔ اور تم دوبارہ کبھی اس سے اس مسئلے پر خود بات نہیں کرو گی، نہ ہی اسکول کے حوالے سے کسی گلے شکوے کے لیے اسے بلاؤ گی۔ میں اپنے مسئلوں کو ہینڈل کر سکتا ہوں اور وسیم کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گیا۔ امامہ اسی طرح خالی پلیٹ لیے بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں زندگی میں اچانک اتنی بے سکونی کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ فیری ٹیل جو چند ماہ پہلے سالار کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور جو اس کے پیروں کو زمین پر ٹکنے نہیں دیتی تھی، اب وہ پریوں کی کہانی کیوں نہیں رہی تھی؟ اس میں پریشانیوں کا جنگل کیسے اگایا تھا؟ یا شاید یہ اس کے ستارے تھے جو ایک بار پھر گردش میں آئے ہوئے تھے۔ اسکول کی بلڈنگ کے اسٹرکچر کو واقعی بہت نقصان پہنچا تھا۔ سب کچھ جیسے اسکوائر ون پر آ گیا تھا۔ یہ سالار کے لیے حالیہ زندگی کا پہلا بڑا ذاتی مالیاتی نقصان تھا۔ چند گھنٹوں میں سب کچھ راکھ ہو جانے کا مطلب اسے زندگی میں پہلی بار سمجھ میں آیا تھا، اور اس پر سب سے بدترین چیز یہ تھی کہ اس سارے ایشو میں اس کے سسرال کے ملوث ہونے پر کم از کم اس کی فیملی میں سے کسی کو شبہ نہیں تھا۔ لیکن اسے ثابت کرنا مشکل نہیں، تقریباً ناممکن تھا۔ گاؤں کا کوئی فرد ملوث ہوتا تو پولیس ابتدائی تفتیش کے بعد کسی نہ کسی کو ضرور پکڑ لیتی، مگر اس آتش زدگی میں وہاں کے کسی شخص کی انوالومنٹ ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور جتنے پروفیشنل طریقے سے ایک ہی وقت میں مختلف کیمیکلز کے استعمال سے عمارت کے مختلف حصوں میں وہ آگ لگائی گئی تھی، وہ کسی عام چورو چکے کا کام نہیں تھا۔ اگر مقصد اسے نقصان پہنچانا تھا تو اسے بے حد نقصان ہوا تھا۔ اگر مقصد اسے چوٹ پہنچانا تھا تو یہ پیٹ پر ضرب لگانے جیسا تھا۔ وہ دوہرا ہوا تھا مگر منہ کے بل نہیں گرا تھا۔ اسے چھوڑ دو سالار۔ وہ دوسرے ویکینڈ پر پھر اسلام آباد میں تھا، اور طیبہ اس بار جیسے گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ اس سب سے اس بار مزید خائف ہو گئی تھی۔ تمہیں شادی کا شوق تھا، وہ پورا ہو گیا ہے، اب چھوڑ دو اسے۔ آپ کو اندازہ ہے آپ مجھے کتنی تکلیف پہنچاتی ہیں جب آپ مجھ سے اس طرح کی بات کرتی ہیں؟ سالار نے ان کو بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا۔ اس نے پھر ماں کی بات کاٹی تھی۔ تم عقل کے اندھے ہو، تم عقل کے اندھے ہو سکتے ہو، ہم نہیں۔ اور کون ہے تمہارا دشمن امامہ کی فیملی کے سوا؟ طیبہ برہم ہو گئی تھی۔ اس سب میں امامہ کا کیا قصور ہے؟ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ بات نہیں آتی اور نہ ہی آئے گی۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور آئندہ بھی یہی کہوں گا، میں امامہ کو ڈیورس نہیں کروں گا۔
कम अज़ कम इस वजह से तो नहीं कि उसकी फैमिली मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। आपको कोई और बात करनी है तो मैं बैठता हूँ। इस इशू पर मुझे ना आज ना ही दोबारा बात करनी है। तैयबा कुछ बोल नहीं सकी थी। वो वही कुछ कह रहा था जो सिकंदर की ज़ुबानी वो पहले से सुन चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ फहमी थी कि वो इस बार किसी न किसी तरह उसको इस बात पर तैयार कर सकें जिसके बारे में सिकंदर को कोई उम्मीद नहीं थी। सिकंदर इस वक्त वहाँ नहीं थे। वो आध घंटा वहाँ बैठने के बाद वापस बेडरूम में आया तो इमामा टीवी देख रही थी। वो उसे गांव लेकर नहीं गया था, लेकिन इस्लामाबाद में वीकेंड के बाद अगले 2 दिन में होने वाली कॉन्फ्रेंस की वजह से साथ ही ले आया था। वो अपना लैपटॉप निकाल कर कुछ काम करने लगा था जब उसे अजीब सा एहसास हुआ था। वो जिस चैनल पर थी वहाँ मुसलसल इश्तिहार रहे थे और वो सोफे पर बैठी उन्हें बेहद यकसुई से देख रही थी। वो आम तौर पर मुसलसल चैनल सर्फिंग में मसरूफ़ रहती थी। इश्तिहारात को देखना बेहद हैरान कुन था। सालार ने वक्तन फ़वक्तन 2-3 बार उसे और टीवी को देखा था। उसने 10 मिनट के दौरान उसे एक बार भी चाय का मग उठाते नहीं देखा था जो उसके सामने टेबल पर पड़ा था, जिसमें से अब भाप उठना बंद हो गई थी। उसने लैपटॉप बंद किया और बेड से उठकर उसके पास सोफे पर आकर बैठ गया। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सालार ने उसके हाथ से रिमोट कंट्रोल पकड़कर टीवी ऑफ कर दिया। तुमने मेरी और मम्मी की बातें सुनी हैं क्या? वो चंद लम्हों के लिए साकित हो गई थी। वो जिन या जादूगर नहीं था, शैतान था। और अगर शैतान नहीं था तो शैतान का सीनियर मिनिस्टर ज़रूर था। उसकी आंखों में आंखें डाले उसे देखते हुए झूठ बोलना बेकार था। उसने गर्दन सीधी कर ली। हाँ, किचन में चाय बनाने गई थी मैं, और तुम और मम्मी लाउंज में बातें कर रहे थे। मैंने किचन में सुना सब कुछ, उसने सर झुकाए कहा। वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि तैयबा के मुतालबे ने चंद लम्हों के लिए उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। आखिरी चीज़ जो वो तसव्वुर कर सकती थी वो वही थी कि कोई सालार से उसे छोड़ने के लिए कह सकता था, और वो भी इतने साफ अल्फाज में, इतने हतक आमेज़ अंदाज में। तुम जब यहाँ आते हो वो ये सब कुछ कहती हैं तुमसे? एक लंबी खामोशी के बाद उसने सालार से पूछा, जो उसे तसल्ली देने के लिए कुछ अल्फाज ढूंढ रहा था। नहीं, हर बार नहीं कहती, कभी कभी वो ओवर रिएक्ट कर जाती हैं। उसने हमवार लहजे में कहा। मैं अब इस्लामाबाद कभी नहीं आऊँगी, उसने यकदम कहा। लेकिन मैं तो आऊँगा, और मेरे साथ तुम्हें भी आना पड़ेगा। अल्फाज सीधे थे मगर लहजा नहीं। उसने सालार का चेहरा पढ़ने की कोशिश की थी। तुम अपनी मम्मी की साइड ले रहे हो? हाँ, जैसे मैंने उनके सामने तुम्हारी साइड ली। वो उसके जवाब पर चंद लम्हों के लिए बोल नहीं सकी। वो ठीक कह रहा था। खामोशी का एक और लंबा वक्फा आया और फिर सालार ने कहा, ज़िंदगी में अगर कभी मेरे और तुम्हारे दरमियान अलहदगी जैसी कोई चीज़ हुई तो उसकी वजह मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली नहीं बनेगी। कम अज़ कम ये ज़मानत मैं तुम्हें देता हूँ। वो फिर भी खामोश रही थी। कुछ बोलो। क्या बोलूँ? जब तुम खामोश होती हो तो बहुत डर लगता है मुझे। इमामा ने हैरानी से उसे देखा था। वो बेहद संजीदा था। मुझे लगता है तुम पता नहीं इस बात को कैसे इस्तेमाल करोगी मेरे ख़िलाफ़। कभी। उसने जुमला मुकम्मल करने के बाद कुछ तवक्कुफ़ से एक आखिरी लफ्ज़ का इजाफ़ा किया। वो उसे देखती रही लेकिन खामोश रही। सालार ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। तुम मेरी बीवी हो इमामा, वो मेरी माँ हैं। मैं तुम्हें शट अप कह सकता हूँ, उन्हें नहीं कह सकता। वो एक माँ की तरह सोच रही हैं और माँ की तरह रिएक्ट कर रही हैं। जब तुम माँ बनोगी तो तुम भी इसी तरह रिएक्ट करने लगोगी। उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा, मुझसे कहा। मैंने इग्नोर कर दिया। जिस चीज़ को मैंने इग्नोर कर दिया उसे तुम सीरियसली लोगी तो ये हमाकत होगी। वो उसे समझा रहा था। वो सुन रही थी। जब वो खामोश हुआ तो उसने मध्यम आवाज़ में कहा कि मेरे लिए सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा। जब से शादी हुई है यही कुछ हो रहा है। तुम्हारे लिए एक के बाद एक मसला आ जाता है। मुझसे शादी अच्छी साबित नहीं हुई तुम्हारे लिए। अभी से इतने मसले हो रहे हैं तो फिर बाद में पता नहीं। सालार ने उसकी बात काट दी। शादी एक दूसरे की किस्मत से नहीं की जाती, एक दूसरे के वजूद से की जाती है। अच्छे दिनों के साथ के लिए लोग फ्रेंडशिप करते हैं, शादी नहीं। हम दोनों का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी है, जैसा भी है, एक साथ ही है अब। अगर तुमको लगता है मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था तो तुमसे शादी के बाद पहले मेरा प्राइज़ बॉन्ड निकलेगा, फिर मुझे कोई बोनस मिलेगा, फिर मेरी प्रमोशन होगी, और फिर मैं लोगों के दरमियान बैठकर बड़ी खुशी से ये बताऊंगा कि मैरिड लाइफ मेरे लिए बहुत लकी है। तो सॉरी,
मुझे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए हो सकता है अनटाइमली, गैर मुतवक्का नहीं हो सकता। जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए हो सकता है अनटाइमली, गैर मुतवक्का नहीं हो सकता मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता हूँ, कितना मुखलिस हूँ, वो वक्त बता सकता है। इसलिए तुम खामोशी से वक्त को गुजरने दो। ये चाय तो ठंडी हो गई है, जाओ दोबारा चाय बना लाओ। वो उसका चेहरा देखती रही। कोई चीज़ उसकी आंखों में उमड़ने लगी थी। अल्लाह ताला इंसान को ज़िंदगी में कहाँ कहाँ से तहफ़्फ़ुज़ देता है, कहाँ कहाँ से दीवारें लाकर खड़ा कर देता है इंसान के गिर्द। और डॉक्टर सिब्ते अली के साए में रही थी तो उसे यकीन था कि उससे ज़्यादा इज़्ज़त, ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ कोई उसे दे ही नहीं सकता। कम अज़ कम शादी जैसे रिश्ते से वो ज़िम्मेदारी के अलावा किसी चीज़ की तवक्को नहीं रखे हुए थी। और अब अगर वो इस शख्स के साथ वाबस्ता हुई थी तो वो तहफ़्फ़ुज़ के नए मफ़हूम से आगाह हो रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं है इमामा, सलार ने उसके चेहरे पर फैलते आंसुओं को देखते हुए उसे नरमी से कहा। वह सर हिलाते और अपनी नाक रगड़ते हुए उठ गई। उसकी वाकई ज़रूरत नहीं थी। सलार ने इस मसले को कैसे हल किया था ये इमामा नहीं जानती थी। स्कूल की तामीर दोबारा कैसे शुरू हुई थी उसे ये भी नहीं पता था। लेकिन स्कूल दोबारा बन रहा था। सलार पहले से ज़्यादा मसरूफ़ था और उसकी ज़िंदगी में आने वाला एक और तूफ़ान किसी तबाही के बगैर गुजर गया था। मुझे हाथ दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सलार ने दो टोक इनकार करते हुए कहा। लेकिन मुझे है, वो इसरार कर रही थी। ये सब झूठ होता है। उसने बच्चों की तरह उसे बहलाया। कोई बात नहीं, दिखाने में क्या हर्ज है। उसके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। तुम क्या जानना चाहती हो अपने मुस्तकबिल के बारे में? मुझसे पूछ लो। सलार उसे उस पामिस्ट के पास ले जाने के मूड में नहीं था जो उस 5 स्टार होटल की लॉबी में था, जहाँ वो कुछ देर पहले खाना खाने के लिए आए थे। और खाने के बाद उसकी बीवी को पता नहीं वो पामिस्ट कहाँ से याद आ गया था। वेरी फ़नी, उसने मजाक उड़ाया। अपने मुस्तकबिल का तो तुम्हें पता नहीं, मेरे का कैसे होगा? क्यों, तुम्हारा और मेरा मुस्तकबिल साथ साथ नहीं है क्या? उसने मुस्कुराकर उसे जताया था। इसीलिए तो कह रही हूँ, पामिस्ट के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं। उसका इसरार बढ़ा था। देखो, हमारा आज ठीक है, बस काफ़ी है। तुम्हें कल का मसला क्यों हो रहा है? वो अभी रजामंद नहीं हो रहा था। मुझे है कल का मसला, वो कुछ झल्ला कर बोली थी। उसे शायद ये तवक्को नहीं थी कि वो उसकी फरमाइश पर इस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार करेगा। कितने लोग हाथ दिखाकर जाते हैं उस पामिस्ट को। तुम्हें पता है, मेरी कलीग्स को उसने इनके फ्यूचर के बारे में कितना ठीक बताया था। भाभी की भी कितनी कज़न्स आई थी इसके बारे में। वो अब उसे कायल करने के लिए मिसालें दे रही थी। भाभी आई थी इनके पास? उसने चौंक कर पूछा था। नहीं, वो अटकी। तो ये कि उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, मुझे तो है। और तुम नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। वो एकदम संजीदा हो गई थी। कब? अभी। वो बेख्तियार हंसा और उसने हथियार डालते हुए कहा, पामिस्ट को हाथ दिखाना दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत है, और मैं तुमसे ऐसी किसी हमाकत की तवक्को नहीं करता था। लेकिन अब तुम ज़िद कर रही हो तो ठीक है, तुम दिखा लो हाथ। तुम नहीं दिखाओगे? उसके साथ लॉबी की तरफ जाते हुए उसने कहा। नहीं, सालार ने दो टोक अंदाज में कहा। चलो कोई बात नहीं, खुद ही तो कह रहे हो कि मेरा और तुम्हारा मुस्तकबिल एक है, तो जो कुछ मेरे बारे में बताएगा वो पामिस्ट, वो तुम्हारे बारे में भी तो होगा। इमामा अब उसे छेड़ रही थी। मसलन? सालार ने भवें उचकाते हुए उससे पूछा। मसलन अच्छी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी अगर मेरी होगी तो तुम्हारी भी तो होगी। ज़रूरी नहीं है। वो उसे तंग कर रहा था। हो सकता है शोहर के तौर पर मेरी ज़िंदगी बुरी गुजरे तुम्हारे साथ, तो मुझे क्या, मेरी तो अच्छी गुजर रही होगी। इमामा ने कंधे उचकाकर अपनी बेनियाजी दिखाई। तुम औरतें बड़ी सेल्फिश होती हो। उसने साथ चलते हुए जैसे उसके रवैये की मजम्मत की। तो ना किया करो फिर हमसे शादी, ना किया करो हमसे मोहब्बत। हम कौन सा मरी जा रही होती हैं तुम मर्दों के लिए, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। वो हंस पड़ा। चंद लम्हों के लिए वो वाकई लाजवाब हो गया था। हाँ, हम ही मरे जा रहे होते हैं तुम लोगों पर। इज़्ज़त की ज़िंदगी रास नहीं आती, शायद इसलिए। वो चंद लम्हों बाद बड़बड़ाया। तुम्हारा मतलब है तुम शादी से पहले इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे थे? वो एकदम बुरा मान गई थी। हम शायद जनरलाइज बात कर रहे थे। वो उसका बदलता मूड देखकर गड़बड़ाया। नहीं,
तुम सिर्फ अपनी बात करो। तुम अगर नाराज़ हो रही हो तो चलो फिर पामिस्ट के पास नहीं जाते। सालार ने बेहद सहूलत से उसे मौजू से हटाया था। नहीं, मैं कब नाराज़ हूँ, वैसे ही पूछ रही थी। उसका मूड एक लम्हे में बदला था। वैसे तुम पूछोगी क्या पामिस्ट से? उसने बात को मज़ीद घुमाया। बड़ी चीज़ें हैं, उसने बेहद संजीदगी से जवाब दिया। वो कुछ कहना चाह रहा था मगर तब तक वो पामिस्ट के पास पहुंच चुके थे। एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठा वो गैर दिलचस्पी से अपनी बीवी और पामिस्ट की इब्तदाई गुफ्तगू सुनता रहा, लेकिन उसे अपनी बीवी की दिलचस्पी और संजीदगी देखकर हैरत हुई थी। पामिस्ट अब उसका हाथ पकड़े अदसे की मदद से उसकी लकीरों का जायज़ा ले रहा था। फिर उसने बेहद संजीदगी से कहना शुरू किया, लकीरों का इल्म ना तो हतमी होता है ना ही इल्हामी। हम सिर्फ वही बताते हैं जो लकीरें बता रही होती हैं। बहरहाल मुकद्दर बनाना, संवारना और बगाड़ना सिर्फ अल्लाह ताला ही का काम है। वो बात करते करते चंद लम्हों के लिए रुका। फिर उसने जैसे हिरानी से कुछ देखते हुए बेख्तियार उसका चेहरा देखा और फिर बराबर की कुर्सी पर बैठे उसके शोहर को, जो इस वक्त अपने ब्लैकबेरी पर कुछ मैसेजेस देखने में मसरूफ़ था। बड़ी हैरानी की बात है, पामिस्ट ने दोबारा हाथ देखते हुए कहा। क्या? उसने कुछ बेताब होकर पामिस्ट से पूछा। आपकी ये पहली शादी है? ब्लैकबेरी पर अपने मैसेज चेक करते करते उसने चौंक कर पामिस्ट को देखा। उसका ख्याल था ये सवाल उसके लिए था, लेकिन पामिस्ट की मुखातिब उसकी बीवी थी। हाँ, इमामा ने कुछ हैरान होकर पहले पामिस्ट और फिर उसे देखकर कहा। ओह अच्छा। पामिस्ट फिर किसी गौर-व-खोज में मशगूल हो गया था। आपके हाथ पर दूसरी शादी की लकीर है, एक मजबूत लकीर, एक खुशगवार कामयाब दूसरी शादी। पामिस्ट ने उसका हाथ देखते हुए जैसे हतमी अंदाज में कहा। इमामा का रंग उड़ गया था। उसने गर्दन मोड़कर अपने शोहर को देखा। वो अपनी जगह पर बिल्कुल साकित था। आपको यकीन है? इमामा को लगा जैसे पामिस्ट ने कुछ गलत पढ़ा था उसके हाथ पर। जहाँ तक मेरा इल्म है उसके मुताबिक तो आपके हाथ पर शादी की 2 लकीरें हैं और दूसरी लकीर पहली लकीर की निस्बत ज़्यादा वाज़ेह है। पामिस्ट अब भी उसके हाथ पर नज़रें जमाए हुए था। सालार ने इमामा के किसी अगले सवाल से पहले जेब से वॉलेट और वॉलेट से एक करेंसी नोट निकालकर पामिस्ट के सामने मेज़ पर रखा। फिर बड़ी शाइस्तगी से कहते हुए उठ खड़ा हुआ। थैंक यू, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है। उसे उठकर वहाँ से चलते देखकर इमामा ना चाहने के बावजूद उठकर उसके पीछे आई थी। मुझे अभी और बहुत कुछ पूछना था उससे, उसने खफगी से सालार के बराबर में आते हुए कहा। मसलन? सालार ने कुछ तीखे अंदाज में कहा। वह फौरी तौर पर उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकी। उसने मुझे और परेशान कर दिया है। मामा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो पार्किंग में आए तो उसने गाड़ी में बैठते ही सालार से कहा, इट वॉज़ योर चॉइस, ये तुम्हारा अपना इंतखाब था। सालार ने कुछ बेरुखी से कहा था। उसने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम खुद गई थी उसके पास अपना मुस्तकबिल देखने। सालार, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? इमामा ने उसकी बात के जवाब में यकदम कहा, यह नतीजा अगर तुमने पामिस्ट की पेशगोई के बाद निकाला है तो मुझे तुम पर अफसोस है। सालार को गुस्सा आया था उस पर। इमामा कुछ खफीफ सी हो गई। ऐसे ही पूछा है मैंने। तुम्हें पहले कम वहम थे मेरे बारे में कि किसी पामिस्ट की मदद की ज़रूरत पड़ती? सालार की खफगी कम नहीं हुई थी। दूसरी शादी तो वो तुम्हारी प्रेडिक्ट कर रहा है, एक कामयाब खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? ये भी तो हो सकता है तुम मुझे छोड़ दो, सालार ने इस बार चुभते हुए अंदाज में कहा था। उनकी गाड़ी अब मेन रोड पर आ चुकी थी। मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, इमामा ने सालार को देखे बगैर बेसाख्ता कहा। फिर हो सकता है मैं मर जाऊं और उसके बाद तुम्हारी दूसरी शादी हो। सालार को एकदम उसे चिढ़ाने की सूझी। इमामा ने इस बार उसे खफगी से देखा। तुम बेवकूफ़ी की बात मत करो, वैसे तुम कर लेना शादी, अगर मैं मर गया तो अकेली मत रहना। इमामा ने कुछ और बुरा माना। मैं कुछ और बात कर रही हूँ, तुम कुछ और बात करना शुरू हो जाते हो, और तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सालार के मशवरे ने उसे डिस्टर्ब किया था और ये उसके जुमले की बेरब्ती में झलका था। सालार खामोश हुआ। इमामा भी खामोश थी। तुम असल में ये चाहते हो कि मैं तुमसे कहूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो तुम दूसरी शादी कर लेना? कुछ लम्हों के बाद यकदम बोली थी। वो उसकी जहानत पर आशश कर उठा था। तो क्या मैं ना करूँ? सालार ने जानबूझकर उसे बड़ी संजीदगी से छेड़ा। उसने जवाब देने की बजाय उसे बड़े परेशान अंदाज में देखा।
مجھے پامسٹ کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ پچھتائی تھی۔ تم مجھ سے سود کے بارے میں سوال کرتی ہو اور خود یہ یقین رکھتی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی قسمت کا حال پتہ ہو سکتا ہے۔ وہ صاف گو تھا اور ہمیشہ سے تھا، مگر اس کی صاف گوئی نے امامہ کو کبھی اس طرح شرمندہ نہیں کیا تھا جس طرح اب کیا تھا۔ گھڑوں پانی پڑنے کا مطلب اسے اب سمجھ آیا تھا۔ انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں میں، اس نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ جانتا ہوں، اور تمہیں فرشتہ کبھی سمجھا بھی نہیں میں نے۔ مارجن آف ایرر دیتا ہوں تمہیں، لیکن تم مجھے نہیں دیتی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اور وہ بہت کم کوئی غلط بات کرتا تھا۔ امامہ کو یہ اعتراف تھا۔ زندگی اور قسمت کا پتہ اگر زائچوں، پانسوں، اعداد، لکیروں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، بس صرف یہی چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ شرمندگی سے سن رہی تھی۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ بول ہی نہیں سکی تھی۔ سالار بعض دفعہ اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ یقین اور اعتماد تو اس کا اثاثہ تھا۔ یہ اس کے پاس کیسے چلا گیا تھا؟ اس رات امامہ کو پہلی بار یہ بے چینی ہوئی تھی۔ وہ ساتھی تھے، رقیب نہیں تھے، پر اسے چند لمحوں کے لیے سالار سے رقابت ہوئی تھی۔ وہ ایمان کے درجوں میں اس سے بہت پیچھے تھا۔ وہ اسے پیچھے کیسے چھوڑنے لگا تھا؟ وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار اس کے دائیں جانب تھا۔ وہ وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے اور اپنی شادی کے 7 ماہ بعد وہاں عمرے کے لیے آئے تھے۔ احرام میں ملبوس سالار کے برہنہ کندھے کو دیکھتے ہوئے امامہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد وہ خواب یاد آیا تھا۔ سالار کے دائیں کندھے پر کوئی زخم نہیں تھا، لیکن اس کے بائیں کندھے کی پشت پر اب اس ڈنر نائف کا نشان تھا جو ہاشم مبین نے اسے مارا تھا۔ تم نے پہلے کبھی مجھے اس خواب کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ امامہ کے منہ سے اس خواب کا سن کر شاکڈ رہ گیا تھا۔ کب دیکھا تھا تم نے یہ خواب؟ امامہ کو تاریخ، مہینہ، دن، وقت سب یاد تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ اس دن جلال سے ملی تھی، اتنے سالوں کے لا حاصل انتظار کے بعد۔ سالار گونگ تھا۔ وہ وہی رات تھی جب وہ یہاں امامہ کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، اس آس میں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، یہ جانے بغیر کہ اس کی دعا قبول ہو رہی تھی۔ اس دن میں یہاں تھا، اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے امامہ کو بتایا تھا۔ اس بار وہ ساکت ہوئی۔ عمرے کے لیے؟ سالار نے سر ہلایا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتا رہا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ اس دن تم یہاں نہ ہوتے تو شاید۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر بات مکمل نہیں کر سکی تھی۔ شاید؟ سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، یوں جیسے چاہتا تھا وہ بات مکمل کرتی۔ وہ کیسے کرتی؟ اس سے کیسے یہ کہہ دیتی کہ وہ اس دن یہاں نہ ہوتا تو شاید جلال اس سے ایسی سرد مہری، ایسی بے رخی نہ برتتا، وہ سب کچھ نہ کہتا جو اس نے کہا تھا۔ وہ اس کے اور جلال کے بیچ میں اللہ کو لے آیا تھا، اور اس کے لیے سالار کو یقیناً اللہ نے ہی چنا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے سب کچھ جیسے سر سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی، لیکن سالار کی باتیں اس کی سماعتوں سے چپک گئی تھیں۔ اتنے سالوں میں جب بھی یہاں آیا تمہارے لیے عمرہ کیا تھا میں نے، اور بڑے سادہ لہجے میں امامہ کو بتا رہا تھا، اسے رلا رہا تھا۔ تمہاری طرف سے ہر سال عید پر قربانی بھی کرتا رہا ہوں میں۔ کیوں؟ امامہ نے بھررائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ تم منقوہہ تھی میری، دور تھی لیکن میری زندگی کا حصہ تھی۔ وہ روتی گئی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ اسی شخص نے کرنا تھا کیا؟ اسے سالار کے حافظ قرآن ہونے کا پتہ بھی اسی وقت چلا تھا۔ وہ جلال کی نعت سن کر مسحور ہو جاتی تھی، اور اب وہاں حرم میں سالار کی قرأت سن کر گنگ ہوئی تھی۔ ایسی قرأت کہاں سے سیکھی تم نے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ جب قرآن پاک حفظ کیا تب۔ اب تو بات پرانی ہو گئی ہے، اس نے بڑے سادہ لہجے میں بتایا۔ امامہ کو چند لمحوں کے لیے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کبھی نہیں بتایا۔ وہ شاکڈ تھی۔ تم نے بھی کبھی نہیں بتایا اتنے مہینوں میں؟ پتہ نہیں، کبھی خیال نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ حفاظ ہی ہیں، میرا حافظ قرآن ہونا ان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، وہ کہہ رہا تھا۔
तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? आंसुओं का एक रेला आया था इमामा की आंखों में। जलाल को पेडिस्टल पर बिठाए रखने की एक वजह उसका हाफिज कुरान होना भी था, और आज वो जिसकी बीवी थी हाफिज कुरान वो भी था। बहुत सी नेमतें पता नहीं अल्लाह किस नेकी के एवज अदा करता है, समझ में नहीं आता। वो दिलों में कैसे रहता है। वो सुनती आई थी, वो दिलों को कैसे बूझ लेता है। वो देख रही थी, बस सब कुछ कुन था अल्लाह के लिए, बस ऐसे ही, इतना ही सहल आसान, पलक झपकने से पहले, सांस आने से पहले। अल्लाह सामने होता तो वो उसके कदमों में गिरकर रोती। बहुत कुछ मांगा था, पर ये तो सिर्फ चाहा था। वो इतना कुछ दे रहा था, उसका दिल चाहा था वो एक बार फिर भाग कर हरम में चली जाए, जहाँ से कुछ देर पहले आई थी। रो क्यों रही हो? वो उसके आंसुओं की वजह नहीं जान पाया। वो रोते रोते हंसी। बहुत खुश हूँ इसलिए, तुम्हारी एहसानमंद हूँ इसलिए, नेमतों का शुक्र नहीं अदा कर पा रही इसलिए। वो रोती हंसती और कहती जा रही थी, बेवकूफ़ हो इसलिए। सालार ने जैसे खुलासा किया, हाँ वो भी हूँ। उसने अपने आंसू पोंछते हुए शायद पहली बार सालार की ज़ुबान से अपने लिए बेवकूफ़ का लफ्ज़ सुनकर खफगी का इजहार नहीं किया था। एक लम्हे के लिए इमामा ने आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर हरम के सहन में खाना काबा के बिल्कुल सामने बराबर में बैठे सालार को देखा, जो बहुत खुशुलहानी से कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तुम जो कुछ कर रही हो इमामा, तुम इस पर बहुत पछताओगी। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। 9 साल पहले हाशिम मुबीन ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा था, सारी दुनिया की जिल्लत, रुसवाई, बदनामी और भूख तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। उन्होंने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा था। तुम्हारे जैसी लड़कियों को अल्लाह जलीलो ख्वार करता है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। इमामा की आंखें नम हो गईं। एक वक्त आएगा जब तुम दोबारा हमारी तरफ लौटोगी, मिन्नत समाजत करोगी, गिड़गिड़ाओगी, तब हम तुम्हें धुतकार देंगे। तब तुम चीख चीख कर अपने मुंह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगोगी, कहोगी कि मैं गलत थी। इमामा अश्कबार आंखों से मुस्कुराई। मेरी ख्वाहिश है बाबा, उसने ज़ेरे लब कहा, कि ज़िंदगी में एक बार मैं आपके सामने आऊँ और आपको बता दूँ कि देख लीजिए, मेरे चेहरे पर कोई ज़िल्लत, कोई रिसवाई नहीं है। मेरे अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। मुझे दुनिया के लिए तमाशा नहीं बनाया, न दुनिया में बनाया है, ना ही आखिरत में किसी रुसवाई का सामना करूँगी। और मैं आज अगर यहाँ मौजूद हूँ तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं सीधे रास्ते पर हूँ। और यहाँ बैठकर मैं एक बार फिर इकरार करती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उनके बाद कोई पैगंबर आया है, ना कभी आएगा। मैं इकरार करती हूँ कि वही पीरे कामिल हैं। मैं इकरार करती हूँ कि उनसे कामिल तरीन इंसान कोई दूसरा नहीं। उनकी नस्ल में भी कोई उनके बराबर आया है, ना ही कभी आएगा। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुझे मेरी आने वाली ज़िंदगी में भी कभी अपने साथ शिरक करवाए, ना ही मुझे अपने आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर किसी को ला खड़ा करने की जुर्रत हो। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ज़िंदगी भर मुझे सीधे रास्ते पर रखे। बेशक मैं उसकी किसी नेमत को नहीं झुटला सकती। सालार ने सूरह रहमान की तिलावत ख़त्म कर ली थी। चंद लम्हों के लिए वो रुका, फिर सजदे में चला गया। सजदे से उठने के बाद वो खड़ा होते होते रुक गया। इमाम आंखें बंद किए, दोनों हाथ फैलाए दुआ कर रही थी। वो उसकी दुआ ख़त्म होने के इंतज़ार में बैठ गया। इमामा ने दुआ ख़त्म की। सालार ने एक बार फिर उठना चाहा और उठ नहीं पाया। इमामा ने बहुत नरमी से उसका दायां हाथ पकड़ लिया था। वो हैरत से उसे देखने लगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत हुई वो नहीं मिला, ऐसा पता है क्यों होता है? रात के पिछले पहर नरमी से उसका हाथ थामे वो भीगी आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ कह रही थी, मोहब्बत में सिद्क ना हो तो मोहब्बत नहीं मिलती। 9 साल पहले जब मैंने जलाल से मोहब्बत की तो पूरे सिद्क के साथ की। दुआएं, वजीफ़े, मन्नतें, क्या था जो मैंने नहीं किया, मगर वो मुझे नहीं मिला। वो घुटनों के बल बैठी हुई थी। सालार का हाथ उसके हाथ की नरम गिरफ्त में था। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे थे, और तुम्हारी मोहब्बत में मेरी मोहब्बत से ज़्यादा सिद्क था। सालार ने अपने हाथ को देखा। उसकी ठोड़ी से टपकने वाले आंसू अब उसके हाथ पर गिर रहे थे। सालार ने दोबारा इमामा के चेहरे को देखा।
मुझे अब लगता है कि मुझे अल्लाह ने बड़े प्यार से बनाया है। वो मुझे ऐसे किसी शख्स को सौंपने पर तैयार नहीं था जो मेरी कदर ना करता, ना कदरी करता, मुझे ज़ाया करता। और जलाल, वो मेरे साथ यही सब करता, वो मेरी कदर कभी ना करता। 9 साल में अल्लाह ने मुझे हर हकीकत बता दी, हर शख्स का अंदर और बाहर दिखा दिया। और फिर उसने मुझे सालार सिकंदर को सौंपा, क्योंकि वो जानता था कि तुम वो शख्स हो जिसकी मोहब्बत में सिद्क है। तुम्हारे अलावा और कौन था जो मुझे यहाँ ले आता? तुमने ठीक कहा था, तुमने मुझसे पाक मोहब्बत की थी। वो बेहिस्सो हरकत सा उसे देख रहा था। उसने इस एतराफ़, इस इजहार के लिए कौन सी जगह चुनी थी? अब उसके हाथ को नरमी और एहतराम से चूमते हुए बारी बारी अपनी आंखों से लगा रही थी। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत होगी मैं ये नहीं जानती, दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है, मगर मैं जितनी ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ गुजारूंगी, तुम्हारी वफ़ादार और फर्माबरदार रहूँगी, ये मेरे इख्तियार में है। मैं ज़िंदगी के हर मुश्किल मरहले, हर आजमाइश में तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं अच्छे दिनों में तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ, मैं बुरे दिनों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। उसने जितनी नरमी से उसका हाथ पकड़ा था, उसी नरमी से छोड़ दिया। वह अब सर झुकाए दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ कर रही थी।